Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the facts and that is about a plane, the definition of a plane, the equation of plane in different forms, in 1-point form, in normal form, in Cartesian form, and in 3-point form, in intercept form, and the distance of a point from a plane and intersection of planes. So these concepts we have discussed in the previous classes. Now on the behalf of these concepts we have an exercise, and that's exercise 11.3. So we should have some fun with the questions of exercise 11.3. And in that exercise there lies the question number first, and in that question number first we have the general form of equation of a plane, and first we have to transform that into the normal form. Means we have to find the direction cosines of normal to the plane and distance of a point from a plane. Means the general form of equation of plane is actually ax plus by plus cz plus t is equal to 0, while capital A, capital B and capital C ordered three tuple is called the attitude numbers of the plane. But attitude numbers of the plane are actually the direction ratios of normal to the plane. लेकिन हमें यहाँ पे direction ratios नहीं चाहिए बल्कि direction cosines. Means we have to change this equation to the normal form, that is Lx plus My plus Nz is equal to P, while L, M and N are the direction cosines of normal to the plane and P is the distance of the plane from the origin. So first we have to change the general form into the normal form. तो general form को हम normal form में कैसे change करते हैं, पढ़ा है हमने reduction of general form of equation of plane to the normal form. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जनरल फॉर्म में से जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेके जाते हैं आरएचएस में, फिर करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय और थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर. तो ऑटोमेटिकली जो गिवन इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल फॉर्म में, और फिर हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइनस एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? So in our question first there lies the part A, and in that question we have the given equation of plane in general form. The general form of equation of plane is, the general form of equation of plane is, and that is Z is equal to 2. We have a plane, we have the equation of a plane, and that is Z is equal to 2. Instead of that thing we can write 0 into x plus 0 into y plus 1 into z, and that's equal to 2, right? So ये बन गई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड इसके एटीट्यूड नंबर क्या होंगे 0 0 1, और ये होगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो पहले हमें इस जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा टू नॉर्मल फॉर्म. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेके जाएंगे आरएचएस में, वो ऑलरेडी कहां पे है आरएचएस में, तो इसलिए अब क्या करेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ. नाउ डिवाइडिंग, पढ़ा है हमने ये आर्टिकल हाउ टू रिड्यूस द जनरल फॉर्म इनटू द नॉर्मल फॉर्म. नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट by square root of coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square. Dividing throughout by coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square. That is by, किससे डिवाइड करेंगे, that's by square root of what is coefficient of x, that is 0 square, plus what is coefficient of y, that is again 0 square, plus what is coefficient of z, that's again that's 1 square. So that's equal to, that is by square root of 1 square, that is by 1. तो 1 से डिवाइड कर देना है, या यहीं तक लिखेंगे that's by coefficient of 1 square. तो डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, we get, yes, what we get, 0 divided by square root of 0 square plus 0 square plus 1 square into x plus 0 divided by square root of 0 square plus 0 square plus 1 square into
y plus 1 divided by square root of 0 square plus 0 square plus 1 square into z, and that's equal to 2. Implies this can be written as, yes, 0 divided by anything that is 0, तो क्या मिलेगा, 0 into x plus 0 into y plus 1 into z, because 0 square plus 0 square plus 1 square, that is 1. 1 by 1 is 1, and that's equal to 2. So implies, तो क्या रहेंगे फिर, which is of the form lx plus my plus nz is equal to p, which is of the form, किस फॉर्म में है, lx plus my plus nz is equal to p. Therefore तो फिर डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ नॉर्मल क्या बनेंगे, therefore direction cosinus of normal to the plane, direction cosinus of normal to the plane are, yes, ordered 3 tuple of 0 0 1, l m and n, तो 0 0 and 1, और distance क्या है from the distance of this plane from the origin, that is 2, and distance of this plane and distance of this plane from origin is 2 units, and distance of this plane from origin is 2 units. Actually यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 था, y का कोफिशिएंट 0 था, इसलिए जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जब हमने रिड्यूस किया इनटू नॉर्मल फॉर्म, ये फिर से वही इक्वेशन बन गई, z इज इक्वल टू 2, इसलिए इसमें चेंज नहीं आई. लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट पे देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, दैट्स x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, पार्ट सेकंड में. तो यहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाउ टू रिड्यूस द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, एंड हाउ टू लोकेट द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द नॉर्मल, एंड हाउ टू लोकेट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. सो सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे ये सब कुछ समझ में आएगा इजीली, क्योंकि वहां पे इक्वेशन हमारे पास थी z इज इक्वल टू 2, तो x का कोफिशिएंट भी 0 था, y का कोफिशिएंट भी 0 था. अब यहाँ पे देख लो, द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, the general equation of a plane is x plus y plus z is equal to 1. यह है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. हमें इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा, इसे आप सपोज हम फर्स्ट रखेंगे, तो ये प्लेन फर्स्ट जो है, इस पे जो नॉर्मल होगा, हमें उसके डायरेक्शन कोसाइनस चाहिए, और चाहिए डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. मींस फिर से हमें इसे चेंज करना पड़ेगा तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, यानी नॉर्मल फॉर्म में. तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक द कांस्टेंट टर्म टू द RHS, एंड दैट इज ऑलरेडी इन द RHS. वो ऑलरेडी कहां पे है, RHS में. अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, डिवाइडिंग. तो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाते हैं और उसकी साइन बनाते हैं पॉजिटिव इफ नीडेड. तो वो RHS में ही है और उसकी साइन भी ऑलरेडी पॉजिटिव ही है. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यस, कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y whole square plus coefficient of z whole square. तो डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, दैट इज बाय, किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1, सो 1 स्क्वायर, प्लस व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y, अगेन 1, सो 1 स्क्वायर, प्लस व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ z, अगेन 1, सो 1 स्क्वायर. वी गेट, yes, what we get, x divided by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square plus, yes, next क्या आएगा,
y divided by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square plus next z divided by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square, and that's equal to 1 divided by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. क्योंकि थ्रू आउट डिवाइड करना है, बोथ साइड्स डिवाइड करना है, तो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया. नाउ यहां से क्या आ रहा है, इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 3. तो बनेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1 divided by square root of 3 into y plus 1 divided by square root of 3 into z, and that's equal to 1 divided by square root 3, right? Now ये automatically a given equation x plus y plus z equal to 1 हो गई, reduced to the normal form lx plus my plus nz is equal to p, which is of the form ये किस फॉर्म में बन गई आप इक्वेशन? यस, lx plus my plus nz is equal to p, where l, m and n, what are they? They are the direction cosines of normal to the plane. तो क्या बन गए डायरेक्शन cosines? 1 by square root 3, 1 by square root 3, 1 by square root 3, और distance of the plane from the origin क्या बन गई? Again 1 divided by square root 3. So therefore the direction cosines of normal to the plane, therefore the direction cosines of normal to the plane are क्या बन गए उसके डायरेक्शन कोसाइन? ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 1 by square root 3, 1 by square root 3, 1 by square root 3, and इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? एंड डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन and distance of this plane from origin क्या बन रही है? वो distance is again 1 divided by square root 3 units. तो इसका मतलब ये जो प्लेन है x plus y plus z is equal to 1, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइनस जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 1 by square root 3, 1 by square root 3, 1 by square root 3, और ये प्लेन ओरिजिन से कितना दूर होगा? 1 divided by square root 3 units. So how to find the direction cosinus of the normal to the plane and how to locate the distance of a point from the plane? First you have to change the general form to the normal form. तो general form को normal form में reduce कैसे करते हैं? पढ़ा है हमने जिगरा. पहले constant term को लेके जाएंगे RHS में, उसकी साइन बना देंगे पॉजिटिव if needed, right? उसके बाद डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर. तो ऑटोमेटिकली जो गिवन इक्वेशन होगी जनरल फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी टू नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? lx plus my plus nz is equal to p. There we locate the value of l, m and n means the direction cosines of normal to the plane, and there we locate the p means distance of that plane from the origin. Now there are two more parts in this question, and similarly by the same procedure you can solve those two parts. So that was all about question number first of this exercise. Now we are on question number second of this exercise, and in that question number second we have a given plane, and that given plane is at a distance of 7 units from the origin, and the vector which is perpendicular to the plane, that is n vector, and that's equal to 3i plus 5j minus 6k. We need to find the vector equation of this plane. So it is of the form equation of a plane which is perpendicular to a given direction and at a given distance from the origin. तो क्या होती है उसकी इक्वेशन? r vector dot n cap is equal to d. So d आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है, that is 7, और n कैप आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसने दे रखा है वेक्टर n. वेक्टर n में आपको चाहिए n कैप. तो प्रीटी सिंपल, मींस पहले हमें यूनिट वेक्टर लोकेट करना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n. फिर इस इक्वेशन में n कैप और d को सब्स्टिट्यूट कर दो, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो वी हैव टू, क्वेश्चन क्या है? हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए और दे रखा है कि ये प्लेन 7 यूनिट्स दूर है कहां से? ओरिजिन से, और इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है n वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस
6k। बट हमारी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ which is at a given distance from the origin and perpendicular to a given direction, उसकी इक्वेशन होती है r vector dot n cap is equal to d। r vector होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, d होती है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, वो भी दे रखी है, तो हमें चाहिए सबसे पहले क्या, n cap। सो given a vector सपोज उसका नाम हम n रखेंगे, इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू ए रिक्वायर्ड प्लेन, जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए, इसीलिए हमने यहां पे मेंशन किया है रिक्वायर्ड प्लेन जो हमें चाहिए। क्लियर? तो देयरफॉर n कैप, तो n कैप किसके बराबर आएगा, यस 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इंटू द वेक्टर n। एक वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इंटू द वेक्टर, सो दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। n वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो एक वेक्टर जब एक्सप्रेस किया गया हो अपने कंपोनेंट्स में, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इनटू द वेक्टर एंड दैट इज यस 3i प्लस 5j माइनस 6k। इज दैट क्लियर? So implies n cap किसके बराबर आएगा, yes this 1 divided by square root of 3 square is 9, 5 square is 25, 9 plus 25 minus 6 square is 36, so 36 plus 25 plus 9 कितने आएंगे, 70 into 3i plus 5j minus 6k। तो इंप्लाइज हमें मिला n कैप, तो n कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, therefore unit vector normal to the plane is n cap and that's equal to 3 divided by, मल्टीपल कर दो 1 by square root 70 से, so 3 divided by square root of 70i plus 5 divided by square root of 70j minus 6 divided by square root of 70 into k। also ये डिस्टेंस, ये प्लेन कितना दूर है ऑरिजिन से, 7 यूनिट्स। also distance of this plane from the origin, distance of this plane from the origin is 7 units, therefore its equation in vector form is, तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, यस r डॉट n cap is equal to d, which implies r dot n cap का अपना वैल्यू पुट कर दो, 3 by 70i, 3 by square root 70i plus 5 by square root 70j minus 6 by square root 70k, and that's equal to d, the distance of that plane from the origin, and that is 7. So this would be the required vector equation of the plane which is at a distance of 7 units from the origin, and the vector which is perpendicular to the plane is 3i plus 5j minus 6k. So all about question number 2 of this exercise. In that question we have to actually locate the equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin, and a vector which is perpendicular to the plane is 3i plus 5j minus 6k, right?
और अगर आपको चाहिए अब इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन, मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, लेकिन अगर मेंशन होता तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे निकाल पाते? डायरेक्टली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर एक्चुअली क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एन अननोन पॉइंट। तो अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, इसलिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? xi plus yj plus zk. तो put the value of xi plus yj plus zk instead of r, find the dot product and you will get it as Cartesian equation. So all about question number 2. Now we are on question number 3 of this exercise, and in that question number 3 we have the given equations of the planes in vector form and we have to change those equations into the Cartesian form. So pretty simple. First part lies there. The given vector equation of plane is क्या है प्लेन की गिवन वेक्टर इक्वेशन? r डॉट i plus j minus k is equal to 2. This is the given vector equation of a plane and we have to change that vector equation into the Cartesian form. So pretty simple. जैसे मैंने इससे पहले भी मेंशन कर दिया कि कहीं पे कोई वेक्टर इक्वेशन आपके पास अवेलेबल होगी तो उस वेक्टर इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में? जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, राइट? सो implies what is the value of r vector? R vector is actually the position vector of any unknown point. Unknown point has the coordinates x, y, z. So the position vector must be xi plus yj plus zk. So it is xi plus yj plus zk. इसको डॉट करना है किसके साथ? I plus j minus k and that's equal to 2. Because यहां पे मेंशन कर सकते हैं because r vector is the position vector of point P of x, y, z and that's equal to xi plus yj plus zk. r vector हम यूजुअली लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द अननोन पॉइंट, तो अननोन पॉइंट के वेरिएबल ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अननोन कोऑर्डिनेट्स होंगे, and that we take as x, y, z. That's why the position vector will become xi plus yj plus zk. So implies this can be further written as, now we have a vector expressed in terms of components, another vector expressed in terms of components, and you have to find their dot product. The dot product of two vectors when they are expressed in terms of components किसके बराबर होगा? Sum of products of the corresponding scalar components. So x into 1 plus y into 1 plus z into minus 1 and that's equal to 2. So implies क्या बनेगी इक्वेशन फिर? x plus y minus x 1 is our x plus y 1 is our y plus into minus is minus z 1 is our z. So x plus y minus z, ये यहाँ पे plus 2 है तो इस साइड में minus 2 आएगा, is equal to 0. तो x plus y minus z minus 2 is equal to 0 would be the Cartesian equation of the given plane, which is the required Cartesian equation. Which is the required Cartesian equation of the plane, of the given plane. तो गिवन प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी वेक्टर फॉर्म में और हमें उसे चेंज करना था कार्टेशियन फॉर्म में. तो इसी तरह जीरा और भी 2-3 पार्ट्स है इसमें. वेक्टर इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है एंड यू नीड टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. तो करना कुछ नहीं है, ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर व्हिच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड दैट मस्ट बी xi plus yj plus zk. So put the value of r vector as xi plus yj plus zk, find the dot product, you will get the Cartesian equation of the planes. And that's all about question number 3 of this exercise. Now we are on question number 4 of this exercise 11.3, and in that question number 4, in the first part of that question number 4, in all the parts we have to do the same thing. That is, we have a given plane. The equation of the given plane in general form is 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. This is the equation of this plane. And a perpendicular is drawn from the origin.
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली होंगे 0 0 0 और वो परपेंडिकुलर जहां पे मीट कर रहा है प्लेन को, सपोज उस पॉइंट का नाम हम वहां पे दे रहे हैं n एंड वी नीड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक है जिगरा। सो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने कैलकुलेट किया है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो बिल्कुल हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि क्या है गिवन क्वेश्चन, हमारे पास एक प्लेन है, गिवन प्लेन जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और इस प्लेन पे ओरिजिन से डाला गया है एक परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर प्लेन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, उस पॉइंट के हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपके पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है और ओरिजिन से डाला गया है एक परपेंडिकुलर प्लेन पे, तो जहां पे वो परपेंडिकुलर प्लेन को मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको उस पॉइंट के चाहिए कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम आएंगे गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन पे। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज the given equation of plane is, क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन? 2x प्लस 3y प्लस 4z minus 12 is equal to 0. This equation is directly in the form of ax plus by plus cz plus d is equal to 0, right? While ये a, b और c क्या होते हैं? एटीट्यूड नंबर्स। तो इस प्लेन के एटीट्यूड नंबर्स फिर क्या बनेंगे? 2, 3 एंड 4, ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 2, 3 एंड 4। तो यही यहां पे डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। द एटीट्यूड नंबर्स ऑफ दिस प्लेन आर, द एटीट्यूड नंबर्स ऑफ दिस प्लेन आर, सपोज इसका नाम यहां पे फर्स्ट रख लेंगे, तो क्या बनेंगे इसके एटीट्यूड नंबर? ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 2, 3, 4। लेकिन एटीट्यूड नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो अभी हमें नॉर्मल नहीं पता कि कौन सा है, तो सपोज हम लेट करेंगे, लेट एन बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन फर्स्ट। लेट एन बी द foot of perpendicular, let n be the foot of perpendicular from origin to plane first। चूंकि ON जो है, n जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ON जो है वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो एक प्लेन के एटीट्यूड नंबर जो होंगे 2, 3, 4, वो नॉर्मल के क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। बिकॉज द एटीट्यूड नंबर्स ऑफ अ प्लेन आर नथिंग, दे आर जस्ट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, therefore direction ratios of normal to the plane, therefore direction ratios of normal ON to the plane first are, yes, क्या होंगे? अगेन ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 2, 3, 4। तो ON एक्चुअली एक लाइन है और हमें मिले इसके डायरेक्शन रेशियोज, वो है ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 2, 3, 4। इस लाइन, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है टू द प्लेन, इस लाइन के हमें मिले डायरेक्शन रेशियोज। एक लाइन के जब आपके पास होते हैं डायरेक्शन रेशियोज और दे रखा है कि ये एक किसी पॉइंट में से पास हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसकी इक्वेशन निकाल पाओगे बाय 1 पॉइंट फॉर्म, विच इज x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। सो हमें मिले ON के डायरेक्शन रेशियोज। ऑल्सो ON पासिस थ्रू O ऑफ 0, 0, 0, क्योंकि हमने ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डाला है। ऑल्सो इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है कौन से पॉइंट में? O ऑफ 0, 0, 0। तो मिले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट में से ये पास हो रहा है,
और मिले इसके डायरेक्शन रेशियोज, तो बाय वन पॉइंट फॉर्म वी कैन इजीली फाइंड इट इज इक्वेशन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ON, therefore equation of ON in one point form is, therefore equation of ON in one point form is, तो ON की इक्वेशन क्या होगी in one point form? Yes, x minus x1 divided by a is equal to y minus y1 divided by b, and that's equal to z minus z1 divided by c, which implies x minus x1 is the x coordinate of the point through which it passes, that is 0. So x minus 0 divided by a is the first direction ratio, that is 2, is equal to y minus y1 is the coordinate, y coordinate of the point through which it passes, that is 0, divided by b is the second direction ratio, that is 3, and which is equal to z minus z1, that is again 0, divided by c, the third direction ratio, that is 4. Is that clear? So implies this can be further written as, यहां से क्या मिलेगा, x minus 0, that is x, so x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 4. X divided by 2 is equal to y divided by 3, and that's equal to z divided by 4. Suppose ये x by 2 कोई रेशो होगा, y by 3 कोई रेशो होगा, z by 3 कोई रेशो होगा, और ये रेशो हम सपोज किसी t के बराबर ले रहे हैं, where t is a real number. Where t is any arbitrary real number, right? So implies यहां से हमें क्या मिलेगा, पहले x by 2 को इक्वेट करो t से, तो क्या मिलेगा, x by 2 is equal to t means x is equal to 2, यहां पे डिवाइड है वहां मल्टीपल, तो x is equal to 2t. क्लियर? y का वैल्यू क्या आएगा, y is equal to 3t, yes, and z must be equal to 4t. तो हमें मिले कोऑर्डिनेट्स, हमें मिला x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू. लेकिन x, y और z क्या होंगे, इस लाइन पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2t, 3t, 4t. दैट इज, इसका मतलब है दैट इज एनी पॉइंट ऑन ON, कोई भी पॉइंट जो ON पे लाई करेगा, एनी पॉइंट ऑन ON इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, इज ऑफ द फॉर्म, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2t, 3t, 4t. जो भी कोई पॉइंट ON पे होगा, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x, y, z, लेकिन x का वैल्यू आया 2t, y का वैल्यू आ गया 3t, z का वैल्यू आ गया 4t. सो ON पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, 2t, 3t, 4t. लेकिन ON पे एक पॉइंट n भी है. So if this point is point n, then the coordinates of point n must be of the form 2t. तो coordinates of n होंगे 2t, 3t and 4t. Clear? So that is any point on ON is of the form 2t, 3t, 4t. That is, इसका क्या मतलब, the point n. Now this point would be point n, ऐसे लिखेंगे. ये पॉइंट n के भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 2t, 3t, 4t, लेकिन पॉइंट n जो है वो लाइन पे भी लाई कर रहा है, वो प्लेन में भी लाई कर रहा है. जब वो प्लेन में लाई कर रहा है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब हम लिखेंगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट n होगा. कब, अगर ये पॉइंट n इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. नाउ दिस पॉइंट वुड बी, now this point would be point n. Now this point would be point n if it satisfies the equation of plane. If it satisfies the equation of plane first, अगर ये प्लेन फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. क्यों जिगरा, क्योंकि हमने लिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. कोई भी पॉइंट जो ON पे लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, 2t, 3t, 4t. लेकिन पॉइंट n भी इसी ON पे ही लाई कर रहा है,
तो ओ इस n के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इन द फॉर्म 2t 3t 4t, लेकिन पॉइंट n प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो इसीलिए लिखा नाउ दिस पॉइंट वुड बी पॉइंट n इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट बिकॉज n होली एंड सोली लाइज ऑन द प्लेन। तो जब ये प्लेन पे लाई कर रहा है, ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x कोऑर्डिनेट के बदल यानी x के बदले 2t, y के बदले 3t और z के बदले यहां पे 4t आएगा। सो देयरफॉर हमें जो इक्वेशन है 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. There we have to put the value of x as 2t, y as 3t and z as this 4t. So therefore 2 into 2t plus 3 into 3t plus 4 into 4t minus 12 is equal to 0 implies 2 2s are this is 4t plus 3 3s are 9t plus 4 4s are 16t minus 12 is equal to 0, which further implies that 16 plus 9 that's 25, 25 plus 4 that is 29, so 29t is equal to minus 12 RHS में बनेगा plus 12, so implies t का वैल्यू आ रहा है 12 divided by 29. सो हमें मिला उस अननोन रेशो t का वैल्यू। तो t का वैल्यू अब क्या है 12 डिवाइडेड बाय 29। अगर t का वैल्यू हमें मिला मींस वी कैन हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट n, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मस्ट बी 2 into t का वैल्यू, 3 into t का वैल्यू, 4 into t का वैल्यू। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आर यस 2t 3t 4t, दैट्स इक्वल टू 2t का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 29, 3t का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 29, 4t का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 29. सिंप्लीफाई दिस, 2 12s are 24 डिवाइडेड बाय 29 इसका x कोऑर्डिनेट होगा, 3 12s are 36 डिवाइडेड बाय 29 इसका y कोऑर्डिनेट होगा एंड 4 12s are 48 डिवाइडेड बाय 29 इसका z कोऑर्डिनेट होगा। तो जिगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर n जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 24 by 29, 36 by 29 and 48 divided by 29. So that is all about the coordinates of foot of perpendicular which is drawn from the origin O of 0 0 0 to the plane 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. और दो पार्ट्स इसमें है।